everyone, this is the video about Italian department at IFLU. I am Nandini and I am from Delhi. Hello everyone, ciao. This is Soumyadeep and I'm from Jamshedpur, Jharkhand. Ciao, I'm Indradeep Bhattacharjee. I'm a first year Italian student and I'm from Jamshedpur, Jharkhand. हेलो नमस्कार, मैं मोनू गोस्वामी, मैं बिहार से हूँ और इटालियन डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। नमस्ते, मैं शिव प्रकाश, मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हूँ। So first question is, why should you choose Italian or why did we choose Italian? Okay. So the main reason behind choosing Italian is that Italian offers you a lot of opportunities. Like first of all, it's very limited. It's not offered in JNU, it's only offered in Delhi University and in IFLU. Moreover, it has a lot of aspects like opportunities, you can grow a lot. You don't need to give any JRF examination for becoming a professor. Only thing is that you need to do your MA, which was first not sponsored by IFLU and now it is being sponsored by IFLU. You can do your MA over here. Now at the year of 2026, this has started in this year. And moreover, there are a lot of fests which happens every year. The people from the council itself, the Italian people do visit you and the environment over here is very good. The faculty is very supportive and there are a lot of growth opportunities. So Italian is basically one of the most sorted out subjects here. So when I was applying here for the counseling, I personally consulted with some of the seniors online through the WhatsApp group, and I was told that Italian is one of the most sorted out subjects here because Italian guarantees you a placement here. Like we talked statistically, last year also, almost all of our seniors got placed. This year also, recently when Amazon conducted its online interview, almost all of them got recruited. So the online interview, through that many of them got recruited through campus placement, and through off-campus placements also many of them got placements. So because the ongoing relationship of India and Italy is very strong, so it is somehow benefiting us and it is somehow milking us in a very good way. I think just as Soumyadeep said, it is taught only at two places, which is DU and IFLU. And so it's obviously less saturated, so it's easier to get सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इटालियन एक यूरोपियन लैंग्वेज है और ये बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है जो कि जैसे मेरे दोस्तों ने जो क्लासमेट हो बता रखा है कि काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज DU और यहीं होता है। और यहाँ का जैसे हमारे सीनियर उन लोग का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है, तो यही सब सोच करके हम लोगों ने लिया था ताकि मेरा फैमिली भी इस लैंग्वेज में कर चुके हैं, तो जिस पोजीशन पर उन लोग हैं उसी के चलते हम लोग ये सोच के ये लैंग्वेज ये एक यूरोपियन लैंग्वेज है और बाकी यूरोपियन लैंग्वेज से काफ़ी सिंपल है, मतलब पढ़ने में भी, और काफ़ी इजी लैंग्वेज है और इस पर अभी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत हैं और उतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है अभी मार्केट में, क्योंकि इसके दो ही अभी कैंपस है, एक IFLU में पढ़ाई जाती है और एक DU में। तो काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो इस पर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते हो आप लोग। हाँ, टेंशन वाली बात नहीं है, जिसको भी जो भी जीरो लेवल से यहाँ पे सिखाया जाता है और आप लोग को अरे नहीं ज़्यादा अच्छा पहली बात तो ये कि यहाँ पे पूरा बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है, जिसको अगर मान लो जैसे बचपन में हम लोग काका गगा ABCD से सीखते थे, उस तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग को सिखाया जाएगा। तो इसमें कोई बात वाली नहीं है कि आपको नहीं आता है तो यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है। यहाँ पे सब चीज़ जैसे इंग्लिश हो, इटालियन हो, पूरे टीचर सपोर्टेड हैं। जिनको कुछ अगर समझ में नहीं आता है उनका चैम्बर में जा कर के उनसे हेल्प ले सकते हैं, वैसी दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या आपकी इंग्लिश उतनी सही नहीं है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना इटालियन में ना ही कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। हाँ, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बट इटालियन में आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें मेन इटालियन है, आप जितना इटालियन को सीखेंगे उतना ही सही है, उसमें उतना इंग्लिश का उतना रोल नहीं है, पर आपकी पकड़ अगर इंग्लिश में अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें कोई इतना दिक्कत लेने की। फोकस रहिए इंग्लिश इटालियन। यूरोपियन लैंग्वेज तो मोस्टली इंग्लिश का बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि जॉब में आपको इंग्लिश और इटालियन ही चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज इटालियन कल्चर टॉट अलॉन्ग विद द लैंग्वेज? So
Telling about the Italian culture, like as we all know, it is very rich. Who doesn't know about the Milan Fashion Week, about Gucci, etc. Ferrero Rocher, Ferrari. Everyone knows about it. So the culture is very rich within itself, like just like India. And the best part of the culture is that the Indian culture and the Italian culture are very similar. Just as a professor says that India is said to be the loudest country, just like that Italians in Europeans are said to be the loudest. तो यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स बहुत होते हैं इटालियन में. एम्बेसी से लोग आते हैं और हम पूरा एक सेलिब्रेशन करते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और हमारी एक नेटिव टीचर भी हैं एंड आई थिंक शी टीचेस अस अ लॉट अबाउट इटालियन कल्चर. लाइक क्लास में बात करते करते वो इटली के बारे में कुछ बताने लग जाएंगे जिससे हमको कल्चर के बारे में बहुत ही रॉ और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है. क्योंकि वो इटली से ही है तो उनको पता है, तो वो हमें बिल्कुल अच्छे से बता पाती हैं कि वहाँ पे एक्चुअली कैसा होता है. एक फेस्ट भी होता है हमारा. तो और उसके हमारी अलावा टीचर उनके साथ भी बहुत कंसिडरेट वे में बहुत अच्छे तरीके से बात करने का कोशिश करती हैं एंड बहुत ही हेल्पफुल हैं वो. आप कभी भी उनके ऑफिस में जाके कभी भी उनसे मिल सकते हैं. शी इज़ वेरी अप्रोचेबल एंड शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ लेडी. हाँ, ये तो बात है. और ये भी है कि जैसे हम लोग पूरे बैच में यहाँ पे 20 सीट है, तो टीचर लोग से डायरेक्टली वो अटैचमेंट हो जाता है. 1 to 1 स्टूडेंट को देखते हैं कौन पढ़ रहा है, किस तरीके से, किनका क्या दिक्कत है. तो ये बात तो है कि हम लोग का डिपार्टमेंट भी चिल है. यहाँ पे हर एक लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज का टीचर प्रोफेसर्स काफ़ी चिल हैं. और हाँ, ये बात है कि हम लोग ओरल के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्री भी बनाना पड़ जाता है और स्पीक करना पड़ जाता है. ईफ्लू एक्चुअली साउथ एशिया का ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ डेडिकेटेडली सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जाती है. एंड उसके अलावा अगर हम इटालियन की बात करें तो इटालियन यहाँ पे इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 2 जगह इटालियन पढ़ाई जाती है, एक ड्यू और एक ईफ्लू. एंड ईफ्लू की अगर बात करें, ईफ्लू में इटालियन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से. ये मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा क्योंकि इसका ये गारंटी है कि हमारे सारे सीनियर्स प्लेस्ड हैं. सबको ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं. एंड इटालियन एम्बेसी इन बैंगलोर जो हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर हर दूसरे तीसरे महीने विजिट करने आते हैं, बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं, इंडिविजुअली मिलते हैं. तो अब हम उनका नाम जानते हैं, वो हमारा नाम जानते हैं. इतना 1 to 1 पर्सनल कनेक्शन उनके साथ हमारा बन चुका है. ऑल थैंक्स टू आवर प्रोफेसर्स, आवर डिपार्टमेंट, जो चाहते हैं कि हमारा 1 to 1 ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो. हाँ, एक्चुअली जैसा उसने बोला कि 2 ही जगह पे है, वहाँ पे भी इफ्लू क्योंकि डेडिकेटेड लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे लैंग्वेज पे बहुत फोकस करते हैं. कई लोग पूछ रहे थे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जैसे तैयारी करना है, मतलब मेरा हो गया, क्या मैं अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाऊँगा. हाँ, फर्स्ट ईयर तो मेनली आपका खाली ही रहता है, आपके लिए काफ़ी टाइम रहेगा फर्स्ट ईयर में, आप अगर कर सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर उस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा तो सेकंड ईयर से शायद आपको इटालियन में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ईयर बाय ईयर ये कठिन होती जाती है. तो फर्स्ट ईयर तो आपके पास काफ़ी है, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 1 साल ही रहेगा आपके पास वैसे मेनली किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फोकस करने के लिए. हम लोग देखते ही देखते 1 साल कैसे गुजर गया हम लोग को पता भी नहीं चला. तो डिपार्टमेंट चिल है, प्रोफेसर चिल है. यहाँ पे आप लोग आएंगे, आप लोग का माहौल उस सर्किल में आप लोग को पता नहीं चलेगा, टाइम बीत जाएगा. बस चिल, सब चीज़ चिल है यहाँ पे. क्लासमेट्स भी चिल है. हम लोग इस तरीके से बॉन्ड में बंध गया है जैसे कि हम लोग काफ़ी बॉन्डिंग हो गया हम लोगों में. सब दूसरे से जगह से आए हैं 20 बच्चे, बट 20 के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारे क्लास में. ये बहुत एक अच्छी चीज़ है. और एक क्वेश्चन जो हर बच्चा यहाँ पे पूछता है कि हैदराबाद बहुत दूर है, वो साउथ इंडिया में है, तो क्या तेलुगु बोलना पड़ेगा, क्या तेलुगु सीखना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है. हम में से किसी को तेलुगु नहीं आती है, हम हिंदी में ही बात करते हैं, हम इंग्लिश में ही बात करते हैं. तो तेलुगु सीखने की या कुछ एडिशनल ये सब लोड दिमाग में लाने की ज़रूरत ही नहीं है. ये सब आप बिल्कुल मत सोचिए एंड बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा. मोस्टली बच्चे यहाँ पे जो फोकस वाले बच्चे होते हैं वही आते हैं यहाँ पे, तो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं. मेस के खाने का भी चिंता मत करिए. सैटरडे छोले भटूरे होते हैं और ऐसे मतलब सारे के खाने के जो डिशेस होते हैं वो एकदम ज़बरदस्त होते हैं, सारे बहुत मस्त होते हैं.
तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेन रही बात क्लासेस की, मेरा ये सजेशन रहेगा कि क्लासेस डेली अटेंड करिए, क्योंकि आप बस क्लासेस अटेंड करेंगे उसके बाद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रिगार्डिंग द वोकैबलरी, जो लोग पूछते हैं जनरली कि वोकैबलरी क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें, तो सिंपली यही है, कुछ नहीं है, इंग्लिश ही है, थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। लाइक बहुत बेसिक से अगर एक एग्जाम्पल हो, जो चीज़ जैसे LY में ख़त्म होती है उसका बस चेंज होकर मेंते हो जाता है। जैसे अगर आप बोले सक्सेसिवली, उसको सुचेसिवा मेंते बोलते हैं, एक्चुअली तो उसको एक्चुअल मेंते बोलते हैं। तो बहुत ईजी रहती है इसकी वोकैबलरी, बस आपको ट्रिक्स जानना है। जनरली साइंस स्टूडेंट बोलते हैं कि यार मैं आर्ट्स में चेंज कर रहा हूँ, कैसे करके ये करूँ वो करूँ, तो कुछ नहीं है, जैसे आप नॉर्मल लॉजिक लगाते उसमें वैसी लॉजिक है। तो इट्स वेरी easy to cope up with this subject and language. Moreover, एंड मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, पैकेज, प्लेसमेंट, बताओ, शुरू करो। जैसे कि जैसे हमारे जो सीनियर हैं उन लोगों को अच्छा खासा प्लेसमेंट लगा है। प्लेसमेंट का नाम बताना क्या पैसे? नहीं, नंबर्स मत दो। हमारे सीनियर जो भी पढ़े हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी का प्लेसमेंट हो चुका है। 1-2 सीनियर्स बचे हैं जो मास्टर्स करेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि अभी इटालियन लैंग्वेज न्यू है, तो आप मास्टर्स करके इजीली प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो लैंग्वेज बढ़िया है, बस यही कह रहा हूँ। हम जैसे हम लोग सीनियर को देखते आ रहे हैं, सब प्लेसमेंट हो चुके हैं। जनरली 7, 8, 9 LPA तो कुछ ऐसा लाइक पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि स्टार्टिंग है, बस ये स्टार्टिंग है, आप समझिए। जो यहाँ पे लाइक ऑन कैंपस प्लेसमेंट जिसमें आते हैं, उसमें अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं, लाइक जैसा मैंने सुना था कि आप दिल्ली में, गुड़गांव के उधर में अगर अप्लाई करते हैं, तो आपके स्टार्टिंग पैकेज ही 10 लाख के ऐसे ऊपर चल जाते हैं। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, ऑफ कैंपस भी ले सकते हैं। इटालियन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी जा रही है। आपको यहाँ पे प्रोफेसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो काउंसलिंग डेस्क है, वो भी जो इंटर्नशिप लाने का जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वाली डेस्क भी बहुत अच्छे से काम कर रही है इटालियन के बेसिस पे। और प्लेसमेंट बेसिकली सबका हो ही जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग रहते हैं जो अपने विल से प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, जो लोग टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो रिसेंटली हमारी इस साल की अगर बात करूँ प्लेसमेंट्स के बारे में, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, तो उसमें जो पैकेज गया है वो 7 to 9 LPA के बीच में गया है, एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स 9 to 11 LPA के बीच में गया है। एंड आउट ऑफ 11 to 13 सीनियर्स आई गेस, और 2 को छोड़कर बाकी सब ने प्लेसमेंट्स ऑप्ट किए हैं। 2 ने सिर्फ नहीं लिए हैं वॉलंटरीली, उसमें से एक मास्टर्स करने जा रहे हैं इटली, और दूसरे मास्टर्स यहीं से ऑप्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता लग गया है कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ऑन कैंपस भी बहुत अच्छे हैं, अमेज़ॉन आता है, और ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और मेन रीज़न यही है कि सैचुरेटेड नहीं है मार्केट। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में इटालियन पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, तो आराम से जॉब्स मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। कट ऑफ, ठीक है, जनरल फॉर जनरल इट इज़ वी, क्योंकि इस साल थोड़ा बढ़ेगा, वी एक्सपेक्ट कि थोड़ा बढ़ जाएगा। तो फॉर जनरल वी एक्सपेक्ट कि 250 to 230 to 250, एंड हाँ सेफ स्कोर, और उससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। एंड फॉर कैटेगरीज आई वुड से OBC NCL के लिए और 10-15 मार्क्स कम। OBC NCL के अराउंड ही EWS भी रहता है, 3-4 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। और उसके बाद SC ST में और आई थिंक 20-30 मार्क्स का डिफरेंस ले सकते हैं। और हाँ, पिछले साल से थोड़ा तो एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हाँ, बिकॉज इस बार कुछ ज़्यादा बच्चे इटालियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो होपफुली कुछ बच्चे हैं ना कि जैसे देखते हैं कि कौन से लेवल में ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है, इस कारण से और ज़्यादा ही उसमें फॉर्म डालते हैं। तो इस और हो सकता है कि कटअप बढ़ने का चांस हो, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग का मार्क्स है 230 के आसपास भी, तो आप इसमें डाल ही दीजिए। ठीक है गाइज, ग्राzie, ये था इटालियन डिपार्टमेंट के बारे में। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो विथ फेलो एस्पिरेंट्स, एंड बाय। और कुछ क्वायरी हो तो And message please join the WhatsApp group link which is given below. It is the IFLU help desk. Like we are over here to help you guys. Like हमारे एडमिशन में भी हमें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी. Actually people need the help to join over here. Like आपको दिक्कतें आएंगी तो उसके लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं. So please do join the WhatsApp group and get updated in that also. Okay. So till then, thank you. Bye bye. Arrivederci.